Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. अक्सर लोग आध्यात्म और विज्ञान के बीच फंसकर रह जाते हैं। ये समझ नहीं पाते कि क्या सही है, विज्ञान या आध्यात्म। आप किसको मानते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज में विज्ञान को हमेशा रिलीजन से अलग रखा जाता है, मगर हमारे प्राचीन भारत में धर्म हमेशा विज्ञान के साथ डेवलप हुआ है। वेद, वेदांत, सांख्य दर्शन जैसे महान ग्रंथ उसका प्रमाण है। इसीलिए ब्रह्मांड और इसके पदार्थ को समझकर ही हम ईश्वर को समझ सकते हैं। बिना ब्रह्मांड को और इसके पदार्थ को जाने ईश्वर को समझना आसान नहीं है। जितने भी अस्त्र शस्त्र और कितने मिशंस, गैजेट जो भी वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया है, सब कुछ पहले से ही हमारे वैदिक ग्रंथों में और पुराणों में लिखा हुआ है। जिसको लोग कल्पना मात्र समझते थे, वह बाद में जाकर प्रमाणित हुआ है। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि जब अध्यात्म और विज्ञान का मिलन हुआ, यानी स्वामी विवेकानंद जब निकोला टेस्ला से मिले, तो क्या हुआ। स्वामी विवेकानंद जी परमहंस के सबसे प्रिय छात्र थे। स्वामी जी को वेदांत दर्शन का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसीलिए परमहंस चाहते थे स्वामी विवेकानंद वैदिक ज्ञान का प्रसार विदेश में करें। क्या आप जानते हैं 1896 में जब स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड पार्लियामेंट लिसन मीटिंग के लिए अमेरिका गए, तब उनकी मीटिंग हुई थी निकोला टेस्ला से। स्वामी विवेकानंद को इनविटेशन मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड में स्पीच देने के लिए, जिसका टॉपिक था वैदिक कॉस्मोलॉजी, वैदिक थॉट्स ऑन क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी का मतलब है साइंस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरीके से अपने स्पीच को प्रेजेंट किया था और उस वक्त यह स्पीच जाके पहुंचा निकोला टेस्ला के पास। निकोला टेस्ला जो 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक थे, आप उनको कह सकते हैं कि आज की टाइम पे दुनिया में हम जितने भी गैजेट यूज करते हैं, 90% गैजेट का श्रेय निकोला टेस्ला को जाता है, क्योंकि उन्होंने एसी करंट का डिस्कवर किया था। निकोला टेस्ला ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि ये यूनिवर्स और स्पेस काइनेटिक एनर्जी से भरा हुआ है और इस एनर्जी को यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पर हार्नेस किया जा सकता है। लेकिन निकोला टेस्ला जब स्वामी जी से मिले, तब स्वामी जी ने उन्हें वेदांत की प्राण और आकाश के बारे में बताया
और यह भी बताया कि इंडियन फिलोसफी के अनुसार कैसे प्राण, एनर्जी और आकाश मिलकर इस यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से स्वामी जी ने यह बताया कि सबसे पहले है ब्रह्म यानी द एब्सोल्यूट, फिर उसके बाद महत्तत्व या ईश्वर जिसको प्राइमल क्रिएटिव एनर्जी या प्राइमल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट आया प्राण और आकाश जिसको हम एनर्जी और मैटर कहते हैं। टेस्ला यह बिलीव करते थे कि ये मैटर और एनर्जी एक ही पदार्थ से बना हुआ है। उनका भी कहीं ना कहीं ऑन ड्युअलिटी बिलीफ था इस ब्रह्मांड के बारे में, जिसे हम संस्कृत में अद्वैतवाद बोलते हैं। और टेस्ला ने स्वामी जी से यह भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में प्रूफ कर पाऊँ। स्वामी जी तब बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने कहा, मिस्टर टेस्ला, अगर आप ऐसा सच में कर पाए तो मैं एक्चुअली जो प्रूफ करना चाहता हूँ वो सच हो जाएगा, तो आप यह काम जरूर करिए। मेरी वैदिक दर्शन, मॉडर्न साइंस और मैथमेटिक्स में प्रूफ हो जाएगी। देन आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। लेकिन टेस्ला ये कर नहीं पाए क्योंकि टेस्ला को संस्कृत के ज्ञान का अभाव था। संस्कृत के वर्ड की मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से टेस्ला असफल रहे। पर ठीक 8 साल के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह प्रूफ करके दिखा दिया। E=mc² का फॉर्मूला दिया, मतलब ऊर्जा और पदार्थ एक दूसरे में बदल सकते हैं, मतलब ये दोनों एक ही पदार्थ हैं। इससे वैदिक अद्वैतवाद भी प्रूफ हो जाता है। फिर टेस्ला ने एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल का नाम था मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। इसमें टेस्ला ने ये एक्सप्लेन किया कि कैसे प्राण, एनर्जी और आकाश मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। इस पुस्तक में निकोला टेस्ला ने संस्कृत शब्द का प्रयोग किया, जैसे प्राण और आकाश। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि निकोला टेस्ला कितना ज्यादा स्वामी जी से इंस्पायर थे। ठीक उसी तरह स्वामी विवेकानंद ने भी एक बुक लिखा था जिसका नाम था राजयोग। इस पुस्तक में स्वामी जी ने ये लिखा था कि कैसे प्राण और एनर्जी मिलकर आकाश फॉर्म यानी तत्वतः हम अपने सेंस से जो देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसके रूप में मैनिफेस्ट होता है। इस प्राण और एनर्जी की ग्रॉस फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है और उसी तरह प्राण और एनर्जी मिलकर हमारे शरीर में हमारे थॉट्स के रूप में मैनिफेस्ट होता है। और इसी प्राण को कंट्रोल करने के लिए ऋषि मुनियों ने प्राणायाम का खोज किया था। टेस्ला लिखते हैं, सभी पदार्थ मूल रूप से एक ही तत्व से निकले हैं और इसी तत्व की कोई शुरुआत नहीं है। संपूर्ण आकाश में यही फैला हुआ है और ये तत्व जीवन देने वाले प्राण या रचनात्मक ऊर्जा से प्रभावित होता है। फिर स्वामी जी ने भी अपनी पुस्तक में ये लिखा था, वर्तमान के कुछ सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक ने वेदांत के विज्ञान सम्मत होने का स्वीकार किया है। इनमें से एक को मैं निजी तौर पर जानता हूँ। यह व्यक्ति दिन रात अपनी लैब में ही लगा रहता है। इसके पास खाने तक का वक्त भी नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा दिए गए वेदांत के लेक्चर को अटेंड करने के लिए वो घंटों खड़ा रह सकता है। उसके अनुसार ये इतने विज्ञान सम्मत है कि विज्ञान आज जिन निष्कर्षों पर पहुंच रहा है वे उनसे पूरी तरह मेल खाता है। दोस्तों, विज्ञान और आध्यात्म दोनों ही जीवन में जरूरी है। विज्ञान हमें प्रामाणिकता देता है और आध्यात्म हमें जीवन के अलग अलग आयामों में जीने का तरीका सिखाता है। आध्यात्म विज्ञान का विस्तार है जिसके कुछ ही पन्ने हम अभी तक खोल पाए हैं और बहुत कुछ खोलना बाकी है। जितना आप इस ब्रह्मांड को जानते हैं, अगर उससे अधिक जानना चाहते हैं तो आपको अध्यात्म के राहों पर चलना ही पड़ेगा। निकोला टेस्ला ने स्वामी जी से कहा था कि आप जो ये फोर्स और मैटर की बात कर रहे हैं ये एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। जो भी स्वामी जी ने स्पीच में कहा था उसी को निकोला टेस्ला भी मानते थे। सर आइजैक न्यूटन मैटर और एनर्जी को अलग अलग तत्व मानते थे, लेकिन टेस्ला का विचार न्यूटन से अलग था। टेस्ला मानते थे कि जब सब कुछ एक ही पदार्थ से बना है तो यह मैटर और एनर्जी पदार्थ एक ही है। देर सही, लेकिन स्वामी जी की जो वैदिक फिलोसफी है वह प्रूफ हो ही गया।
इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी वैदिक फिलोसफी में क्या ताकत है और कितना एक्यूरेट है। स्वामी विवेकानंद और निकोला टेस्ला के बीच कुछ सिद्धांत और विचारधाराओं में काफी समानताएं थी। ये 5 मेन पॉइंट्स हैं जो इन दोनों के बीच की समानता को दर्शाते हैं। पॉइंट नंबर 1, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सोच का समन्वय। स्वामी जी और टेस्ला दोनों ही मनुष्य अस्तित्व और ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में रुचि रखते थे। विवेकानंद ने वेदांत और योगा के माध्यम से आत्मिक और बौद्धिक जगत का अध्ययन किया, जबकि टेस्ला ने विज्ञान के एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसी का अन्वेषण किया। पॉइंट नंबर 2, विचार और ऊर्जा का प्रभाव। विवेकानंद और टेस्ला दोनों ही ऊर्जा को काफी महत्व देते थे। टेस्ला ने ऊर्जा और तरंगों पर अध्ययन किया और दुनिया को बिजली और तरंगों के प्रभाव समझाया, जबकि विवेकानंद कहते थे कि विचार भी एक ऊर्जा है जो व्यक्ति और समाज पर असर डाल सकती है। पॉइंट नंबर 3, ब्रह्मांड की एकता और सब में एक ही शक्ति। वेदांत के अनुसार विवेकानंद मानते थे कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही शक्ति व्याप्त है। टेस्ला भी यही मानते थे कि सभी वस्तुओं और तरंगों का एक ही मूल शक्ति है, जो कि एक यूनिवर्सल फील्ड के रूप में है। पॉइंट नंबर 4, मानव कल्याण में विश्वास। टेस्ला और विवेकानंद दोनों ही अपने ज्ञान और तपस्या का उपयोग मानव कल्याण के लिए करना चाहते थे। टेस्ला ने अपनी इन्वेंशन और खोज से दुनिया में सुविधा और उन्नति लाने का प्रयास किया और विवेकानंद ने योग और वेदांत के ज्ञान को प्रचार करके लोगों में शांति और समृद्धि लाने का प्रयास किया। पॉइंट नंबर 5, अनेकता में एकता का सिद्धांत। विवेकानंद ने कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक ही परिवार है, और टेस्ला भी ऐसे ही विचार में विश्वास रखते थे। दोनों ही विश्वास करते थे कि व्यक्ति और समाज के विकास में एकता का महत्व है। ये सिद्धांत और सोच दोनों महान व्यक्तियों में बौद्धिक और आध्यात्मिक विचारधाराओं का एक साधन और एक समर्पण दिखता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करें। आज्ञा दीजिए मधुश्मिता को। जय शिव शंभू।